friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, आपका स्वागत है on the second session on international law. My dear students, when you are preparing for CLAT is asking questions majorly from constitution, contract, tort, crime, but there are two more areas which are coming up in the last few years. For example, international law. Last year एक सेट था monism and dualism के ऊपर. Yes or no? So there were two sets on Special Marriage Act. So there were three sets, 3 into 5, 15 questions were coming from a little different area than the students are prepared for. Okay? And that is the reason why ProTalent brings this kind of content for you. ProTalent brings the quality content for your development in your CLAT. Okay? We believe that, let's say, the people who are in the remotest part of the country and they wish to get training for their law entrance. Okay, they can get it through protalentdigital.com and ProTalent's YouTube channel. On YouTube channel, we provide a very good quality lectures. On our website, that is protalentdigital.com, we provide lot of content. क्या content available है? Daily current affair. ठीक है, wonderful quality daily current affair. ठीक है दोस्तों, उसको लेना भूलिएगा मत. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, क्योंकि उस करंट अफेयर के अंदर, ठीक है, जो भी डे टू डे बेसिस के ऊपर जो चीजें हो रही है वो हम आपको बताते हैं. नंबर 1. नंबर 2, वी ऑल्सो इंश्योर दैट इन दैट again say protalentdigital.com you get lectures like this plus PDF of it. Number 3, you get previous year questions with detailed explanation. Number 4, you get again say a lot of practice content in it. ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीजें आपको मिलती है उसके अंदर. सो दोस्तों, protalentdigital.com is the only solution available for your success in CLAT. That's how you can possibly think and can possibly continue your preparation. ठीक है, आज सेशन नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ ट्रीटीज. क्या होता है, ट्रीटीज क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, उसके टर्मिनोलॉजीज देखेंगे. एंड देन वी कम टू अगेन से एप्लीकेशन ऑफ कि जब इंटरनेशनल लॉ बनाया जाता है तो क्या इंटरनेशनल लॉ लोकल लॉ से ऊपर होता है या लोकल लॉ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर होता है, कि या ये दोनों हार्मोनी में काम करते हैं. हम उसके बारे में बात करेंगे. वहां से ये मोनिज्म और ड्यूअलिज्म का कंसेप्ट आएगा. ये सुनो, ये कंसेप्ट हम सीखने की कोशिश करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट ट्रीटीज. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटीज? दोस्तों, ट्रीटी तो आपने बहुत नाम सुना होगा. Yes or no? We have extradition treaty with varieties of the countries, so that someone who is an offender in our country is staying in another country, we can ask that country to send that person to us. That's called extradition treaty. So what is a treaty? Treaty is like a contract. Yes, it's a contract. Contract as in there are terms and conditions between two parties. Yes or no? So treaty is फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, समझिए ना दोस्तों, ट्रीटी एक फॉर्मल होती है ना. कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न हो, फॉर्मल हो. ठीक है, पर ट्रीटी तो फॉर्मल होगी. ठीक है, फॉर्मल अगेन से साइन करी है, उसके बाद वो रेटिफाई करी है बिटवीन 2 और मोर सोवरेन नेशन. ठीक है, sovereignty is very important. It's a contract between 2 or more countries. It is adhered by both the party. It is an international agreement between 2 or more states that is governed by international law. So there are many definitions available for a treaty. Okay, there are many definitions available for treaty. So two leaders come together and they say, yes, we have a treaty that look, we are doing something for you, you are doing something for us. That is how the treaty works. So in another sense कि ये एक treaty formal written agreement होता है. ठीक है, एक written agreement है दोस्तों. That's the first thing. Agreement पता होगा सबको. It's a meeting of mind. It is meeting of minds of the people. Okay, and here it is meeting of minds of whom? It is between the actors of international law. Who are the actors of international law? Actors of international law are the countries, are the colonies, are the international organizations, are some private organizations. So they are the actors of international law. Any, you can say, member who is influenced by this international law is an actor of international law.
That's how you can possibly say. And it is also known as convention, pact, exchange of letters, protocol, covenant. They are different words. ठीक है, there are different words, have a different meaning, but in a broad sense they are treaty. ठीक है, so for example, let's say United Nation Framework Convention on Climate Change. So this is a convention. Convention is a treaty. Okay, it's a treaty on climate change between many countries. It's a multilateral, you can say, treaty. What do you mean by multilateral? Many parties are involved. There are bilateral treaty, only two parties are involved. ठीक है, okay, so when two or more parties are involved, not two or more, but more than two parties are involved, it is known as multilateral. Otherwise it is known as bilateral. समझ आ रहा है आपको? Bilateral treaty, ठीक है, and there is something called multilateral treaty. Yes or no? Multilateral, many parties. Bilateral, only two parties. So when there is some kind of changes are happening in a treaty, some amendments are being made in the treaty, it is also known as protocol. क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोकॉल. कभी कभार सिंपल एक्सचेंज ऑफ लेटर होता है, और उस एक्सचेंज ऑफ लेटर का उस समय पे शायद कोई वजूद है, कुछ सालों के बाद उसका वैल्यू नहीं रहता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना. तो इसीलिए ट्रीटी एक फॉर्मलाइज वे में होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो दोस्तों, इंडिया की मतलब इंडिया के आज़ादी के पहले ब्रिटिशर जब यहाँ पे राज करते थे, ठीक है, या ब्रिटिशर जब यहाँ पे आए, दे स्टार्टेड दिस कंसेप्ट ऑफ ट्रीटी इन इंडिया, एंड देयर आर मेनी ट्रीटीज वर साइन. ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ सालबाई, है ना, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम. ठीक है, बहुत सारे ट्रीटीज दे हैव डन अलग अलग सालों में. इनफैक्ट हम आज़ाद हो गए, आज़ादी के बाद भी हमने बहुत सारे ट्रीटीज साइन करी. सो दैट वे यू कैन से ट्रीटीज आर इन लार्ज नंबर. ठीक है. सो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये ट्रीटी जो साइन होती है, तो वो ट्रीटी किस तरीके से इंप्लीमेंट होगी, उसका कोई लॉ है क्या? हाँ, जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टी के बीच का एक अग्रीमेंट है, उसको कैसे गवर्न होगा उसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है. उसी तरीके से है ना, ट्रीटीज को अप्लाई करने के लिए देयर इज अ लॉ ऑफ ट्रीटीज विच इज नोन एज ट्रीटी ऑन ट्रीटीज, है ना, विच इज वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज. जब दो पार्टीज, दो कंट्रीज गो फॉर अ ट्रीटी, ठीक है, वो ट्रीटी कौन से लॉ के द्वारा गवर्न होगी, दैट इज वियना कन्वेंशन. आई होप इट इज वेरी क्लियर. समझ आ रहा होगा आपको? Yes or no? Is that very clear? Great. So, what is mentioned in Vienna Convention? Vienna Convention establishes comprehensive rules, procedures, guidelines, ठीक है, how to draft, how to amend a treaty, how to interpret, how to, you can say, operate those treaty. All those information are clearly mentioned on Vienna Convention on law of treaty, which is a part of इंटरनेशनल ट्रीटी. दोस्तों, इसके द्वारा है ना कुछ कुछ यू कैन से कंट्रीज है जो उसके पार्टीज है, जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं, दे आर पार्टीज. ठीक है. जो यू कैन से येलो कलर में दिख रहे हैं, ये सुनो, दे आर सिग्नेटरीज. ओके. एंड देन दी, सॉरी नॉट येलो, दी पिंक कलर के जो दिख रहे हैं, दे आर सिग्नेटरी. एंड द येलो कलर में जो दिख रहे हैं, they are non-parties. This is for the entire world. Look at this. Okay, look at this. What happens about India? India is signatory to Vienna Convention. Now you may wonder that, sir, what is the meaning of signatory? What will the impact of it? Okay. So then the big question we are going to answer here is how treaty come into execution. Treaty कब एनफोर्स करी जा सकती है, हम उस मुद्दे को आंसर करेंगे अभी थोड़ी देर में. पर उससे पहले हम समझते हैं कि ये वियना कन्वेंशन और लॉ ऑफ ट्रीटीज में कितने पार्ट है. बोला टोटल 8 पार्ट्स है, 85 आर्टिकल्स है. इट केम इनटू द फोर्स ऑन January 27, 1980. ठीक है. एंड देयर आर सम नॉन सोवरेन स्टेट्स कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इट, नॉट नेसेसरली ओनली सोवरेन स्टेट्स. अ कॉलोनी, a trust territory, a protectorate, a vassal state, they can be part of a treaty. For example, let's say when government of India
that is British government of India, were ruling on India. India was a colony of Britisher, and we as a colony are doing some treaty with another country like Burma, then that is also a treaty. ठीक है. So दोस्तों, treaties अलग अलग तरीके की होती है. There may be a law making treaty which defines what will be the law for this particular purpose, like United Nation, you can say UNCLOS Convention on Law over the Seas, UNCLOS. So this is a convention, law over the seas, law sea के ऊपर के law का ये treaty है, where many countries have approved. So that is a law. There are treaty contracts, ठीक है, wherein you can say something like WTO, okay, where what happens, it's a contract between, we can say, many countries. Okay, so these are the kind of types of treaties available. Now when we talk about treaties, there are certain legal maxims, they help us to understand the idea of, you can say, treaty. They help us the concept of treaty कैसे implement होती है, उसका मतलब क्या होता है. तो उसमें से जो सबसे पहला है, जो जिस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, इसको बोलते हैं पैक्टा संट सर्वांडा. क्या बोलते हैं उसको? पैक्टा संट सर्वांडा. Okay, so what does pacta sunt servanda means? It means agreement must be kept. It means states are bound to fulfill in good faith the obligation which are assumed by them under any treaty. तभी तो ट्रीटी का मतलब है. जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा माना जाता है कि ए ने बी को कुछ कमिटमेंट दिया, इन टर्न बी ने ए को कुछ कमिटमेंट दिया, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के कमिटमेंट फुलफिल करने हैं, ये पक्का है. सिमिलरली इन द ट्रीटी सोवरेन नेशंस हैव टू अबाइड बाय द अग्रीमेंट. If they don't abide by the agreement, then there is no point in getting into any kind of treaty. Yes or no? So therefore, there has to be a principle which tells to all the governing against a sovereign nation, telling them, look, whatever the treaty you carry out, please follow that. Yes or no? So, Article number 26 of Vienna Convention says that every treaty in force is binding upon parties to it and must be performed by them in the good faith. Very good. Similarly, Article number 27 says that no party to a treaty might attempt to justify its failure to perform any of its international treaty obligation by invocation of its internal law. वो अपने internal law को का उसका वास्ता देकर ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं तो ये जो ट्रीटी तुम्हारे साथ साइन करी है मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता. ठीक है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, इट इज लाइक मिस्टर ए हैड डन अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी. ठीक है, फिर मिस्टर ए घर मतलब वापस जाकर बी को ये नहीं बोल सकता मेरे घर वाले तैयार नहीं है, माई फैमिली इज नॉट एग्रीइंग टू दिस अग्रीमेंट. ठीक है, जो गलत हो जाएगा ना, फिर तुमने अग्रीमेंट क्यों किया? You are a major, ठीक है, you should know why are you getting into an agreement. When you are getting into agreement, तुमने जब commitment दिया तब मैंने बहुत सारा काम चालू किया. That's how the B will argue. Yes or no? Similarly, here in these sovereign nations, they may say कि look, you agreed on a treaty, ठीक है, and now you come back and say, oh, we had an internal law, I cannot come, ठीक है, and agree on this. So you should know it in the first place. You can't, you can say, come back and say, सॉरी अब मैं नहीं कर सकता, गलत बात है. सो आर देयर एनी एक्सेप्शंस? यस, लॉ कम्स विथ एक्सेप्शंस. यस और नो? सो व्हाट इज एक्सेप्शन टू पैक्टा संट सर्वांडा? पैक्टा संट सर्वांडा क्या बोलता था? दैट अग्रीमेंट हैज टू बी बाउंड, इट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन अ न्यू स्टेट comes into existence as a result of revolt. Okay, for example, let us say there is, you can say, ROC, Republic of China. Okay, that is, you can say, a kind of government was running China, but there was a revolt took place and PRC got developed, People's Republic of China. ठीक है, यहाँ थे चियांग काइशेक करके भाई साहब थे. ये भाई साहब पहुंच गए कहाँ पर? ठीक है, he went to Formos Island and started a new country called Taiwan, and he said the name is ROC, and the ROC is not just Taiwan but entire China. Here Mao
revolted and he developed his own country called PRC, People's Republic of China. Now, whatever is an agreement of ROC will not be applicable on PRC because that's a new state came into existence because of the revolt. समझ आया? विच इज लॉजिकल ना कि भाई ये लोग कुछ नए विचार से बने हैं, ठीक है, दे डू नॉट वांट टू गो बाय द ओल्ड विचार. Yes or no? That's number one. Number two, treaty obligations which are related to property ceded or merged. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट रशिया, है ना, रशिया को अभी यूक्रेन में बड़ा इंटरेस्ट है, लुहांस्क, डोनेट्स्क, है ना, ऐसा कोई जगह है. फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये यहाँ पे क्रीमिया है और ये आपका लुहांस और डोनेट्स्क करके जगह है. ये सुनो, अब ये एरिया रशिया बोलता है कि मेरा है, अब मैं ले लूंगा, क्रीमिया मैं ले लूंगा, ठीक है. सो दिस ट्रीटी ऑब्लिगेशंस विच आर रिलेटेड टू अ प्रॉपर्टी सेडेड और मर्ज्ड, ठीक है, तो अब इस एरिया पे जो भी अग्रीमेंट यूक्रेन ने लोगों के साथ किया होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा. यस और नो? इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. फिर आता है रेबस सिक सेंटिबस which is known as clausula rebus sic centibus. It says there is inapplicability of treaty or a contract due to fundamental change of circumstance. ठीक है, there are fundamental changes in the circumstances took place. For example, ठीक है, WTO के साथ कोई अग्रीमेंट हमने किया था, एक ट्रीटी करी थी, अचानक कंट्री में यू कैन से एक बड़ा सा पेंडेमिक लग गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, now as a country we are not able to fulfill our obligation. ठीक है, some exceptionally different fundamental change have occurred in running the nation. If that is the kind of scenario which comes, then pacta sunt servanda will not be applicable, which means agreement is not bound on a country when there are fundamental changes are taking place. क्लियर है? इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सो ट्रीटी कैसे फॉर्म होती है? भाई ट्रीटी फॉर्म होने के लिए, है ना, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक कंट्री के लोग उनको भेजते हैं कि भाई जाइए और ये अग्रीमेंट करिए, निगोशिएशन करते हैं, फिर सिग्नेचर करते हैं. दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग देशों का अलग अलग सिस्टम होता है. ठीक है, इंडिया में एवरीथिंग इज अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट. Yes or no? So when Mr. Modi goes and carries out some kind of, you can say, agreement with Turkey, yes or no? So this is just a signature. This doesn't come into the force as a treaty between India and Turkey. It comes into force when India ratifies it. So Mr. Modi comes back to India and says, puts that message in the parliament and approves and get approval from the parliament कि yes, we are a member of ISA, International Solar Alliance, or we are member of, you can say, UNHCR, or we are member of, let's say, Permanent Court of Arbitration, whatever that is. Yes or no? Whatever is a treaty, ठीक है, वो ट्रीटी का रेटिफिकेशन पार्लियामेंट कर दे तो लगेगा. Yes or no? ठीक है. सो दोस्तों ज़्यादातर रेटिफिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, फिर एक्सेशन, फिर एंट्री इनटू द फोर्स एंड रजिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन, ये होता है. सो व्हाट इज रेटिफिकेशन? रेटिफिकेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग वेयर अ स्टेट विच इज अ सोवरेन स्टेट, ठीक है, इट गिव्स कंसेंट टू अ ट्रीटी. सिंपल, इट इज गिविंग एक्सेप्टेंस टू अ ट्रीटी. क्या देते हैं? एक्सेप्टेंस. The rights and obligation of treaties are applicable from the date of ratification, ठीक है, not from the date of signature. नोट किया जाए. Yes or no? सिग्नेचर में तो एक रिप्रेजेंटेटिव साइन करके आए थे, ठीक है, बट कंट्री इज अ सोवरेन नेशन. इफ इट इज अ सोवरेन नेशन, इट हैज टू गेट एन अप्रूवल बाय अ पार्लियामेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हर कंट्री का अपना अपना रूल होगा उसके मुताबिक. इंडिया में तो पार्लियामेंट, ठीक है. स्टेट मस्ट अवॉइड डूइंग एनीथिंग विच डिफीट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रीटी बिटवीन द पीरियड ऑफ साइनिंग एंड रेटिफिकेशन. अगर हम सिग्नेचर करके आए हैं तो हम उसके खिलाफ जा नहीं सकते, हम उससे मुकर नहीं सकते हैं उस बात से. यस और नो? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीटी डज नॉट हैव एनी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. कोई भी प्रीवियस डेट से नहीं लगेगा, ठीक है. रेटिफिकेशन इज एन इंटरनल मैटर गवर्न बाय द इंटरनल रूल्स. हम उसको कैसे अप्रूव करें, क्या करें, वो हमारा खुद का इंटरनल गणित है. इंडिया में रेटिफिकेशन इज डन बाय द पार्लियामेंट विच इज, यू कैन से, प्रेसिडेंट उसको फाइनली अप्रूव करते हैं, विच इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट उसको फाइनली अप्रूव करते हैं.
जरूरी नहीं है कि जो भी इंटरनेशनल स्टेट्स है दे आर बाउंड टू रेटिफाई द ट्रीटी. देयर आर सो मेनी ट्रीटीज वी हैव साइंड बट वी हैव नॉट रेटिफाइड इट. इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन रेफ्यूजीज, ठीक है, हमने उसको साइन किया है बट वी हैव नॉट रेटिफाइड इट. yes or no? So that way it is really, you can say, interesting part. And finally, ठीक है, there is a body विच इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, वो एक तरीके से रेटिफिकेशन के लिए प्रेशर क्रिएट कर सकती है अपना पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए. नाउ दैट हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले, बट यू शुड नो दैट दे हैव अ रोल टू प्ले. ठीक है, अब ट्रीटी रेटिफाई तो हो गई, ठीक है, पर रेटिफिकेशन कंप्लीट एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस के साथ हो जरूरी नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने सीखा था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ये हमने सीखा था. ठीक है, हियर इट इज नॉट लाइक दैट. लेट मी गिव एन एग्जांपल, समझते हैं इसको. लेट्स से देयर इज अ स्टेट ए एंड देयर इज स्टेट बी एंड देयर इज स्टेट सी एंड देयर वर मल्टीलैटरल ट्रीटी. दे पुट अ डॉक्यूमेंट कि हम ये सब चीज पर अग्री करते हैं. स्टेट ए बोलता है कि आई अग्री. स्टेट बी बोलता है आई हैव अ रिजर्वेशन. ठीक है, I have a reservation in all this agreement. Okay, Mr. that is state B says I have a reservation. State C बोलता है I have a reservation with what state B is saying. I am going with the multilateral treaty जो हमने डिसाइड किया है उसके साथ मैं सहमत हूं, but I have a reservation with state B. तो अब क्या होगा? Let's take one by one. For example, state A और state B में जो ट्रीटी अग्रीएबल होगी वो कौन सी होगी? जो चीज के लिए भी ने रिजर्वेशन किया है ना, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी सब चीज दोनों स्टेट को बाइंडिंग होगी. सो दिस विल बी अ मॉडिफाइड ट्रीटी. दिस विल बी अ मॉडिफाइड ट्रीटी. ओके, ग्रेट. व्हाट विल हैपन बिटवीन स्टेट ए एंड सी? क्या होगा ए और सी के बीच में? ए और सी के बीच में कोई वेरिएशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है. सो इट विल गो एज एन ओरिजिनल ट्रीटी. ये कैसे जाएगा? ओरिजिनल ट्रीटी. यस और नो? ठीक है, अब स्टेट बी और स्टेट सी के बीच में क्या होगा? स्टेट बी तो रिजर्वेशन चाहता था, स्टेट सी उसी रिजर्वेशन को ऑब्जेक्ट करता था. तो भैया फाइनली दोनों में से एक से क्या होगा? अगर रिजर्वेशन रिमूव हो गया, रिजर्वेशन रिमूव हो गया तो बी और सी के बीच में एक ओरिजिनल ट्रीटी जैसा अग्रीमेंट होगा. रिजर्वेशन रिमूव नहीं हुआ, ठीक है, और सी अगर बी की बात मान ले सो दे हैव अ मॉडिफाइड ट्रीटी, और अगर बात ना माने दैट मीन्स देयर इज नो ट्रीटी. यस और नो? सो मच ऑफ वेरिएशन कैन टेक प्लेस. इज दैट कंफर्टेबल टू एवरीवन? ग्रेट. सो रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ट्रीटी? एक्सक्लूडिंग और मॉडिफिकेशन in some parts of a treaty, that is known as reservation. कितना सिंपल है? yes or no? reservation is allowed. ठीक है, that is whether reservation is allowed, और कभी कभार ट्रीटी ही बोल देती है reservation are prohibited. you have to accept this treaty as a normal term. that's how people generally say. ठीक है, if the treaty is silent about the reservation then the reservation can be made. अगर ट्रीटी साइलेंट नहीं है तो प्रोहिबिशन, मतलब अगर साइलेंट नहीं है, क्लियर कट बोल दिया कोई रिजर्वेशन नहीं है तो रिजर्वेशन नहीं कर सकते. ठीक है, इफ अ स्टेट ऑब्जेक्ट्स टू द रिजर्वेशन मेड बाय द अनदर स्टेट देन ट्रीटी वुड नॉट ऑपरेट बिटवीन दोज टू स्टेट्स. आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ बी एंड सी. इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. ठीक है, अब आता है एक और प्रिंसिपल विच डिटरमाइंस, ठीक है, दिस ट्रीटी रिलेटेड फ्रंट. ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा अभी तक, है ना? हमने अभी तक आपको यह समझाया ट्रीटी कैसे फॉर्म होती है, ट्रीटी को क्या बोलते हैं, ट्रीटी फॉर्म कैसे होती है ना, ट्रीटी के प्रिंसिपल्स क्या है. ठीक है, ये हमने देखा. अब हम बात करें ट्रीटी का जो रेटिफिकेशन हुआ, अब उसको एनफोर्स करना है तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है. सो ट्रीटी का प्रिंसिपल बोलता है पैक्टा टर्टिस नेक नोसेंट नेक परसुंत और प्रोसुंत. ठीक है, इट सेज treaty binds the party and no one else. if there is a treaty between A and B, ठीक है, तो C का उसमें कोई रोल नहीं है. इट्स अ मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, वैसा सिस्टम है. ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन टू अ थर्ड स्टेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज अ ट्रीटी ऑफ सगौली
which was developed between British India and you can say King of Nepal, उनके बीच में हुआ था ये treaty of Sagoli, which is you can say separating a land and the separating a water, है ना, काली रिवर का जो एक पानी है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था, ठीक है। अब वो ट्रीटी है, इट इज बिटवीन ओनली दोस टू पार्टीज, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया, है ना, वो बात माने, नेपाल उस बात को माने, क्योंकि उसके बाद तो दुनिया बदल गई। ब्रिटिश इंडिया की जगह पे इंडिया आ गया, नेपाल में राजा की जगह पे डेमोक्रेसी आ गई, तो दुनिया बदल गई। ये सुनो, सो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ट्रीटी इज बाइंडिंग बिटवीन द टू पार्टीज, हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस। अ थर्ड पार्टी विच व्हेन एक्सेप्टिंग अ ऑब्लिगेशन बाय कोलेटरल एग्रीमेंट इन राइटिंग, तो उसके ऊपर वो ट्रीटी लागू पड़ेगी। सो विच मीन्स ए और बी के बीच में ट्रीटी हुई, सी अंदर घुस गया और बोला मैं भी इसका सिग्नेटरी हूं, तो भैया चल सकता है। राइट्स ऑफ थर्ड स्टेट्स कैन बी क्रिएटेड, दो कंट्रीज के बीच में ट्रीटी हुई सो दैट अ थर्ड स्टेट यू कैन से कैन गेट राइट आउट ऑफ इट, that's also possible, yes or no? So that is also possible, so which means a third party is a part of it. International customs created by treaty binding upon the third states, so some international customs are created कि भैया फॉरेन से अगर कोई सामान आएगा तो किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, तो सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा। that's what this principle say. there are ways through which treaties can be made invalidated, ठीक है। lack of प्रॉपर अथॉरिटी और रिप्रेजेंटेशन है, ऑब्वियसली ना, पार्टी सही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं ना कैपेसिटी ऑफ पार्टी, वैसा है। एरर और मिस्टेक इन द ट्रीटी, एग्जैक्टली सेम। फ्रॉड कमिट कर दिया किसी ने, करप्शन हुआ, कोएर्शन किया गया, कोएर्शन ऑफ अ स्टेट हो गया, ये सब नो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण यू कैन से प्रिंसिपल है विच इज नोन एज यूस कोजेन, ठीक है। उस यूस कोजेन को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है, ट्रीटी इनवैलिडेट हो सकती है। क्या है यूस कोजेन? यूस कोजेन बोलता है सर्टन प्रिंसिपल्स विच ऑल स्टेट्स मस्ट ऑब्जर्व एज अ प्रीएम्प्टिव नॉर्म एंड देयरफॉर यू कैन से दे कैन नॉट से कि आई एम यू कैन से एबल टू डू दिस रॉन्ग थिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा है ना, अपने देश के अंदर, जैसे चाइना है, चाइना वीगर कम्युनिटी को गलत तरीके से ट्रीट करता है, ठीक है, तो चाइना कोई ट्रीटी का वास्ता देकर, ठीक है, ये नहीं बोल सकता है कि अरे ये मेरा वैलिड है, नहीं, नॉट वैलिड, ठीक है। ट्रीटी ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगी अगर इस तरीके के गलत एक्टिविटी करेंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, ठीक है, जिनोसाइड करेंगे, ठीक है, विमेन को गलत तरीके से ट्रीट करेंगे। सो व्हेन ट्रीटीज आर कन्फ्लिक्टिंग विद दी प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स, प्रीएम्प्टरी का मतलब हो गया ऐसे नॉर्म्स, ठीक है, जो एक प्रिविलेज नॉर्म्स है, एक ऐसे नॉर्म्स है जो सबको फॉलो करने चाहिए, सही तरीके से फॉलो करेंगे तो फायदा होगा। अगर कोई भी प्रीएम्प्टरी नॉर्म को कन्फ्लिक्ट करता है, ऐसी ट्रीटी वॉइड है और उसको आप एक्सेप्टेबल नहीं मान सकते हो, एंड देन कोई नया प्रीएम्प्टरी नॉर्म आ गया, ठीक है। आज से करीबन 60-70 साल पहले जब ट्रीटी होती थी तो एनवायरमेंट लॉ कभी पिक्चर में नहीं आते थे, बट नाउ एनवायरमेंटल लॉ आर वेरी मच इन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उस एनवायरमेंट लॉ, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करना, ठीक है, ट्रीटी के माध्यम के द्वारा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ऊपर है। यू कोजेंस इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स के अंदर जो भी ट्रीटी बनती है उसमें जो भी नए प्रिंसिपल क्रिएट होंगे उन सबसे ये ऊपर है, समझ आ रहा है? यू कोजेंस ऊपर है, ठीक है, वो एक प्रिंसिपल है, ये एक तरीके का वैल्यू है ना, वो जो स्कूल में सिखाते थे ना वैल्यू वाला क्लास, ये ऐसा इंटरनेशनल सोवरेन अथॉरिटीज के लिए ये वैल्यू वाली क्लास है ना, दैट्स हाउ द आइडिया इज। ओके, ग्रेट। ट्रीटी कैसे टर्मिनेट करते हैं? अगर दोनों पार्टीज कंसेंट कर दे, कोई एक पार्टी ने विड्रॉ कर दिया, दूसरे पार्टी ने कंक्लूड कर दिया, कोई मटीरियल ब्रीच हो गया, ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ ट्रीटी, वॉर हो गए उनके बीच में, है ना, यूज कोजेंस हो गया, है ना, रेबसिक्स यू कैन से स्टेंटिबस आ गया, तो इनके बेसिस के ऊपर टर्मिनेट हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू, ठीक है। अब आता है महत्वपूर्ण सवाल कि ट्रीटी तो बन गई, है ना, ट्रीटी बन गई, किसके बीच में? दो सोवरेन नेशन के बीच में, या इट्स अ मल्टीलैटरल ट्रीटी। क्या वो ट्रीटी जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्या लोकल लॉ के ऊपर हावी होगी या लोकल लॉ उस ट्रीटी के ऊपर हावी होगा?
समझ आया? ठीक है. सो what we are trying to understand is what is the relationship between public international law and municipal law. The theory for that is monism and dualism. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोनिज्म और ड्यूअलिज्म. क्लैट 2020 में 22 में सॉरी, there was one set which had 5 questions on monism and dualism. क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. सो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं. व्हाट इज म्यूनिसिपल लॉ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल लॉ. म्यूनिसिपल लॉ आर नेशनल लॉ, आर डोमेस्टिक लॉ, आर इंटरनल लॉ ऑफ द सोवरेन स्टेट, like Indian Penal Code, Indian Evidence Act, Indian Contract Act. These are known as municipal law. What are the public international law? It's a body of rules that are legally binding between the states. They are legally binding between international organizations when they are interacting with each other. Yes or no? That is the meaning of international law. International law are binding two or more sovereign states. International law are binding international organizations. International law can also bind an international body with an individual. However, municipal law binds a state and an individual. समझ आ रहा है आपको? स्टेट और इंडिविजुअल को बाइंड करते हैं ये दो. Yes or no? While international law binds two organizations, it binds two states, it binds one state and organization, it binds an organization with a individual. बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती है. ठीक है, पर ये एक देश के लिए होता है और ये पूरे वर्ल्ड के लिए होता है. सही है? दैट इज पूरे अर्थ के लिए होता है ना. इंटरनेशनल लॉ है. सो कौन हावी होगा, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, समझते हैं. पहला थ्योरी बोलता है मोनिज्म. मोनिज्म मोनो वर्ड है इसमें से. मोनो इज सिंगल. International law does not need to be translated into national law. That is what monism says. It means international law को national law बनाने की आवश्यकता नहीं है. It can be directly applied by a national judge. तो कोई भी लोकल जज होगा वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल देखेगा और वहीं से बोलेगा अच्छा वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल था ना, वो अपन अप्लाई करते हैं और उसके मुताबिक हम फॉलो करेंगे. सो सिटीजन्स के ऊपर सीधा इंटरनेशनल लॉ लगा दिया है ना. ठीक है, ये है मोनिज्म. मोनिज्म के पीछे की थ्योरी है डेलीगेशन थ्योरी. देयर इज अ डेलीगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस रूल्स डिसाइड व्हेन एंड हाउ इंटरनेशनल ट्रीटीज विल कम इनटू फोर्स. सो देयरफॉर दैट इज यू कैन से इंटरनेशनल लॉ will be applicable. So international law superior होंगे लोकल लॉ के ऊपर. ठीक है, ऐसा मोनिज्म बोला. इंडिया शायद मोनिज्म नहीं करता है, शायद क्या नहीं करता है. yes or no? So what is dualism? So it says there is a difference between national and international law and later must be incorporated by former. पहले केस में इंटरनेशनल लॉ अगर है वो ऑटोमेटिकली लागू पड़ेगा. ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है. ड्यूअलिज्म बोलता है कि यस देयर इज अ नीड, जरूरत है. किसको? ठीक है, दैट इज द लेटर मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड बाय द फॉर्मर. इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेशन. सो विच मीन्स इंडिया एज अ कंट्री हैज टू अप्लाई इंटरनेशनल लॉ. सो इंटरनेशनल लॉ को नेशनल लॉ में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो देयर इज अ थ्योरी विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी. ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ये बोलता है कि भैया लुक, द नेचर ऑफ प्रोमिसेस जो भी इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटीज में आती है दैट हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, दैट हैज टू बी ट्रांसमिटेड इनटू म्यूनिसिपल स्टैट्यूट बिकॉज उनका नेचर शायद अलग हो सकता है. ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव टू ट्रांसफॉर्म. दैट्स कॉल्ड ड्यूअलिज्म. ठीक है, ड्यूअलिज्म का मतलब है इंटरनेशनल लॉ को नेशनल लॉ में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो जाकर अप्लाई होगा. सिर्फ इंटरनेशनल लॉ या ट्रीटी बना दिया विल नॉट बी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल. समझ आया? वेरी गुड. ठीक है, सो एक और थ्योरी है विच इज नोन एज स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरी. इट सेज इंटरनेशनल लॉ हैज नो एप्लीकेशन इन सोवरेन स्टेट until and unless sovereign state specifically adopts international law by way of enactment. So in monism, ठीक है, international law is automatically applicable on the local government.
ठीक है. ड्यूअलिज्म, it is not automatically applicable. They have to get an approval by the local government, by the local body. ठीक है, तो जाकर वो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा. ये सो नो, समझ आ रहा है सबको? इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, मोनिज्म ड्यूअलिज्म समझ आ रहा है? वेरी गुड. ठीक है, सो दिस इज अबाउट ट्रीटी, हाउ ट्रीटीज आर अप्लाइड. ठीक है, ऑन द स्टेट, क्या रूल से अप्लाई होते हैं, है ना, किस तरीके से काम करते हैं. अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे बताइए. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज. कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.